Hello students, in this video we are going to solve exercise 1.1 question number 2. So let us begin. The question is, write the additive inverse of each of the following. Okay, so before we start, let us try to understand what we mean by additive inverse. Though we have studied earlier, I'll just write down the definition once again. So write it down along with me. Additive inverse is nothing but you can say negative of a number also. Okay, so write it down. Additive inverse means, let's say, the negative of a rational number that is a upon b, what it will be? It will be minus a upon b. That's it. Okay, इतना ही हमें करना है. So let us start with the first question. Okay, so let us try to solve the first question, and we know that if the rational number is a upon b, the additive inverse will be minus a upon b. ठीक है, अगर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, but we need to be very careful while solving the sums when there is minus sign. Okay, so 2 upon 8, what will be the answer? This will be straight away minus 2 upon 8. Okay, now as you can see over here, this is minus 5 upon 9. Okay, so it will be minus 5 upon 9, and we know that minus minus is what? Minus minus is plus. So it will be 5 by 9. Now, first of all, if you see minus 6 upon minus 5, so it will be 6 upon 5. Okay, ये minus और ये minus cancel हो जाएगा. Now we will do additive inverse of this. So this will be minus 6 upon 5. I hope this is clear. ठीक है, ये minus cancel हो जाएगा. So we'll get 6 upon 5. Now we are doing it additive inverse over here. Okay. Similarly, if you see over here, this is 2 upon minus 9. So this will be 2 upon minus 9. And we know that it is minus minus plus. So ये हो जाएगा 2 upon 9. ओके, यहाँ पे नेगेटिव डिनोमिनेटर में है. दैट डजंट मीन कि 9 जो है ना वो सिर्फ नेगेटिव है, ये पूरा टर्म नेगेटिव है. ठीक है, तो वो ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम. सो दिस विल बी माइनस 19 अपॉन माइनस 6. सो दिस विल बी 19 upon 6. I hope you have understood this exercise. Thank you. Hello students, in this video we are going to solve exercise 1.1 question 3 and 4. So let us solve question number 3. As you can see over here, this is verify that minus x equals to x. Okay, so let us start with the LHS side. So LHS is what? LHS is minus of x. Okay, so we have to write down minus, then again minus 11 upon 15. Okay, so if we solve this, this will be minus will be plus. So it will be 11 upon 15, and it is nothing but your RHS. Okay, this is nothing but your x. I hope you have understood. Let us solve the next question. Okay, next question is x equals to minus 13 upon 17. So we'll follow the same procedure. No need to panic. Okay. So x will be, so LHS is what? Minus of x. Fine. Okay, so what we will do, minus, then we have minus, and what is x here? X is also minus 13 upon 17. Okay, I hope you have understood this part. Now let us see what we can do next. Minus, and we know this minus and this minus will be multiplied first, and it will be minus is plus. So we will have 13 upon 17. Okay, and then the final answer will remain the same. This will be minus 13 upon 17. Okay, and this is what? This is nothing but your x, and this is what your RHS is. Okay, I hope you have understood. Now let us solve question number 4. And before we start with question number 4, we need to understand about multiplicative inverse. Okay, so I'll just explain you what is that.
ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू rational numbers is 1, okay, then they are called multiplicative inverse. Then they are called multiplicative inverse of each other. Okay, I'll give you one example to make it clear. See, example is, let's say if I talk about 3 upon 5 multiplied by, okay, an answer should come 1. So what will be the multiplicative inverse? This is only possible if I write 5 on top and 3 in the denominator. Okay, that means what I have done is I have inversed the fraction. 3 upon 5, I have written 5 upon 3. Then only it is possible to get 1 over here. So this is known as your multiplicative inverse. समझ में आ गया? ठीक है, कैसे होगा? कैंसिल होगा और आएगा क्या? 1. चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा? चलो सॉल्व करते हैं. सी द फर्स्ट वन, -13. ओके, -13. फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट इसका आंसर 1 आए. तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं 1/13 लिखूंगा. ओके, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद द साइन. सो जो साइन है ना उसको यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, ये हो गया. अभी देखो 13/19 है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 19 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, और जो साइन है जैसा है वैसा रहने दो. ओके, 1/5 है. 1/5 क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. देखो, सबसे पहले क्या होगा, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 3 15, 8 7 56. ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, फ्लिप करवाना है. तो ऊपर क्या लिखेंगे? 56, और नीचे क्या लिखेंगे? 15. और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आया था, राइट? तो वही साइन कंटिन्यू होगा. जो साइन है वही साइन कंटिन्यू होगा. ओके, फिफ्थ वन करते हैं. पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. सो -1 एंड -2/6, ये क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम सो सॉरी, ये 5 है. आई एम सो सॉरी, ये 5 है, नॉट 6. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2. अंडरस्टूड? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसको अगर हम ऐसे लिखे भी 1/-1, तो भी इसका आंसर क्या रहेगा? -1 ही रहेगा. ठीक है, सो -1 का आंसर क्या रहेगा? -1. आई होप ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा. ठीक है, विल सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू. Hello students, in this video we are going to solve exercise 1.1 question number 5 and question number 6. Okay, so name the property under multiplication used in each of the following. मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना. We are going to solve the first question. Look here. This is -4/5 multiplied by 1. ठीक है, वापस से हमने 1 से उसे मल्टीप्लाई किया, बट आंसर तो हर बार सेम ही आ रहा है. तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हमने 1 से किया. ये मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है दैट इज़ 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है. ठीक है, सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. -13/17 इंटू -2. फिर हमने पहले -2/7 लिखा है, इंटू -13/17 किया है. तो यहाँ पे दिख रहा है जो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इफ यू रिमेंबर, a इंटू बी इक्वल्स टू, पहले b लिखा फिर बाद में a लिखा. दिस इज नथिंग बट योर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी.
ओके, सो दिस इज व्हाट कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे देखो क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है -19/29 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 29 ऊपर है न्यूमरेटर में एंड -19 डिनोमिनेटर में। आंसर क्या आया 1। ये अभी हमने पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल मतलब क्या करना है, हमें फ्लिप करना है। फाइन, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, और रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, माइनस तो जैसे है वैसे ही रहेगा 16/7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अभी हमें ये जो नंबर आया है ना, इसके साथ हमें क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करवाना है। नाउ 6/13 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर, व्हाट इज दिस, -16/7। सो 16 6 इट इज 96 and 13 7 it is 91. Okay, so this is your final answer. I hope समझ में आ गया होगा. Thank you. Hello students, in this video we are going to solve exercise 1.1 question 8, 9 and question number 10, that is fill in the blanks. So let us solve question number 8 first. The question is 8/9, the multiplicative inverse of -1, 1/8, y or y not. ओके, तो हमसे ये पूछा गया है क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1, 1/8 का, हाँ या ना, ठीक है। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 आना चाहिए, 1, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं -1 1/8 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सो 8 × 1 विल बी 8 + 1 विल बी 9, सो ये होगा -9/8, ठीक है। अभी इस नंबर को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 8/9 के साथ, और देखना है क्या +1 आता है। सो हम देख लेते हैं, 8 8 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, आंसर आया -1, और -1 अलाउड नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। हमें हमेशा +1 चाहिए होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ध्यान रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। -1 आएगा तो नहीं चलेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8/9, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। तो क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, हाँ या ना। आंसर आना चाहिए 1, हमेशा ये ध्यान रहे, +1, ठीक है। चलो हम दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके चेक करते हैं। सो फर्स्ट है 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, डन। ओके, अब हम आते हैं इस नंबर पे 3 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये क्या होगा, 3 3 = 9, 9 + 1 10, 10/3। ओके ओके, 3 1/3 क्या होगा, 10/3 होगा, ठीक है। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करवाएंगे, सो 3/10 × 10/3, ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 इज 0.3, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 इज 0.3। आई होप ये समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Okay, hello students. In this video, we are going to solve exercise 1.1, question number 10 and 11. Okay, now you have to be very attentive and your concepts should be clear to solve these kind of sums. Okay, so let us try to solve the first one. The rational numbers that does not have reciprocal. I'm so sorry for this. Does not have reciprocal. Okay, that means एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो, तो एक नंबर है वैसा जिसका रेसिप्रोकल नहीं एग्जिस्ट करता है, एंड वो है कौन सा नंबर? वो है ज़ीरो. ठीक है, सो नंबर ज़ीरो डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. ठीक है, हम ऐसा थोड़ी लिखते हैं, 0/0 थोड़ी लिखते हैं, 0/0 इक्वल्स टू 0, ऐसे नहीं लिखते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. अब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल अगर हम करें ना तो भी वो इक्वल ही रहे. तो एक नंबर सोचते हैं, जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1. 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है, ओके. सिमिलरली अगर हम -1 देखें तो क्या होगा? -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, आंसर क्या आएगा? -1. ठीक है, देयरफॉर रैशनल नंबर्स 1 and -1 are equal to their reciprocals. क्लियर हो गया? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि इक्वल हो उसके नेगेटिव का. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं. ओके, इस क्वेश्चन को मैं अलग से समझाता हूँ. ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. ओके, क्वेश्चन ये है, एक रैशनल नंबर लो और उसका नेगेटिव करो. सपोज करते हैं कि हम रैशनल नंबर लेते हैं 2, ठीक है, और उसका हम नेगेटिव करते हैं. तो 2 का नेगेटिव क्या होगा? -2. आंसर क्या आया? 0. क्या ये 0 इस 2 के सेम है क्या? 2 इक्वल्स टू 0 होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है. तो चलो ट्राई करते हैं. अगर मैं 0 रखूं तो 0 - 0, आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं. दैट मीन्स 0 plus 0 will give what? 0 only. ओके, या तो फिर अगर हम -0 ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे 0 - 0 इक्वल्स टू 0. ये बड़ा अजीब सा लगता है दिखने में. ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होगा जो कि हमें सेम वैल्यू देगा. तो इसका आंसर होगा 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं. हेंस 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. 0 का अगर तुम नेगेटिव करोगे तो -0 होगा. ठीक है, और उसका आंसर 0 आएगा. जब सब सेम ही है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स है. चलो हम एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं. 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो रेसिप्रोकल. ओके, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. तो अभी हमने ये देखा था 1 and -1, वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं. ओके, रिस्पेक्टिवली 1 का रेसिप्रोकल है, -1 का रेसिप्रोकल है. ठीक है, ओके. थर्ड क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज वॉट? माइनस साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? 5 नीचे आ जाएगा. ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 इज. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा? x हो जाएगा. देखो, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? हमें इन्वर्स लेना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1/x दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/x. हमें पता है ये जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चला जाता है? न्यूमिनेटर के पास. सो ये x हो जाएगा. ठीक है, x/1 मल्टीप्लाइड बाई 1. देयरफॉर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x.
ठीक है, ये रूल मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, ध्यान रहे। ओके, तो इसका आंसर आएगा x। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। फाइन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हम लेते हैं 5, पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, और साइन जैसा होता है वही हमें लगाना होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.1। आई होप ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि हाँ सर ये मुझे डाउट है, आई विल गेट बैक टू यू। Okay, if you have liked this video, give it a thumbs up. Thank you.